हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। The question on your screen, question here, write in a verif the correctives measuring of bow leg, knock canny and flat foot. You know that the question is very important. Write a verif the correctives measures of bow leg, knock cannies and flat foot. You know the important. The first here, bow leg. The bow leg is the most important here. Use of braces and modified shoes can be along with the sufficient intake of balanced diet. There is the most important here. The balanced diet can prove to be of help. Walking on the inner edges of the feet may be also help. That's important. There is a intake of balanced diet can prove to be a help, and walking on the inner edges of the feet may also is a help here. The next here, flat foot. Flat foot is important. The exercise like a walking, standing or jumping on the toes and the heels in all four directions is keeping a rope and a stressness of muscles of foot, and which help to develop the arch in the foot here. The flat foot is the most important. The activities are like picking up marbles with the toes and writing the number of the sand with the toes with the also help by developing the arch here. And yoga asana like other mukha asanas and perform to Surya Namaskar and Vajrasana and other therapeutic masses are also help in the developing this arch here. The flat foot has a disease. This is important here. And next here, knock canis here. Knock canis, that's important. The treatment of genuine gums or largely is depend on the causing and severity of problem. Exercise like a horse riding and keeping the pillow between there is a knee and the standing erect for some time are the best. For most people with a genuine gums, and yoga and exercise can be help relaxation and stabilize the kidney. And performing the Padmasana and Gomukh Asana regularly can help to the stiffness and the muscles of the legs and relaxation to the kidney here. And strengthening and exercise can be simply such as a leg rises while the seated or lying down. And using of walking a scapular is also a big help to the pre-puberty stage here. That's the most important here. यहाँ जो क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है बो लेग, नाक, नी और फ्लैट फुट के सुधारात्मक उपाय संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का जो है डिसीज है, बीमारी है, इसे आप जेनेटिकल प्रॉब्लम भी कह सकती हो। कहते हैं बो लेग, नाक, नी और जो है फ्लैट फुट के जो सुधारात्मक उपाय है उसके बारे में हमने चर्चा करना है। यहाँ पर देखा जाए तो इंद्रधनुष पैर यानी बो लेग को हम इंद्रधनुष पैर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा पैर जो होता है इंद्रधनुष की तरह हो जाता है। और ये आपने कई जगहों पर देखा होगा, आपको इस तरह के पैर नज़र आए होंगे, इसलिए हम बो लेग कहते हैं। बो का मतलब होता है इंद्रधनुष और लेग का मतलब पैर। देखा जाए तो संतुलित आहार के पर्याप्त सेवन के साथ ब्राजिस और संशोधित
जूते का उपयोग ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है इन उसके पैर से छुटकारा पाने के, यानी संतुलित आहार लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ब्रांचिस और संशोधित जूते का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इसमें। पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलने से भी मदद मिल सकती है। अगर पैरों के अंदरूनी किनारों से आप चलते हो तो आपको अंदरूनी उस पैर से छुटकारा मिल सकता है। तो ये इसका सुधारात्मक उपाय है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं नकनी क्या है। नौकनी जो होती है दोस्तों ये फ्लैट पैर होता है। फ्लैट पैर आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो तो कई व्यक्ति के जो होते हैं फ्लैट पैर होता है, यानी धरती पर उनका पैर के जो है एक आर्क नहीं बनती है। ठीक है, जैसे आप देखते ही होंगे कि कोई लड़की जो होती है पैर में अगर कलर लगा के जब चलती है तो उसका एक आर्क बन जाता है, एक जगह एक साइड से जो होता है खाली पड़ जाता है। लेकिन जिनके फ्लैट पैर होते हैं उनमें खाली नहीं पड़ता, पूरा ही पैर का निशान पड़ता है, तो इसे हम फ्लैट पैर कहते हैं। ये चलने खड़े होने पर पैर की उंगलियों और एड़ी पर चारों दिशाओं में कूदने, रस्सी कूदने जैसे व्यायाम से पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है और जो पैरों में अर्थ विकसित करने में मदद करती है। इसका यही जो है उपाय है कि आप चलने खड़े होने पर पैर की उंगलियों और एड़ी पर चारों दिशाओं में कूदें और रस्सी कूदने जैसे व्यायाम से पैर मांसपेशियां मजबूत होती है, जो पैर में आश्चर्य विकसित जो है करने में काफ़ी मदद करता है, यानी आर्क बनाने में काफ़ी मददगार होता है। यानी फ्लैट पैर से आप छुटकारा पा सकते हो। पैर की उंगलियों को कंचे उठाना, यानी पैर की उंगलियों से आपको कांचे उठाना पड़ेगा और पैर की उंगलियों से रेत में संख्याएं लिखनी जैसी गतिविधियां भी जो आर्क को विकसित करने में मददगार हो सकता है। यानी आर्क बनाने में ये सारी बातें जो है मददगार हो सकता है कि आप उंगलियों से कांचों को उठाएं, पैर की उंगलियों से रेत की संख्या लिखने की कोशिश करें। ये सारी गतिविधियां जो है फ्लैट पैर वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। देखा जाए अगर हम इसके जो है योगा की बात करें तो सूर्य नमस्कार इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगा माना जाता है। इवन देखें तो ब्रज आसन भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी तरह के बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अन्य चिकित्सक मालिशों में किए जाने वाले अधर्गोम आसन जैसे योग आसन भी जो है आर्क को विकसित करने में सहायता सिद्ध हो सकता है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए जिस तरह ये जो फ्लैट पैर की प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों को जो है फौज में या कोई भी जो है पुलिस के नौकरियों में जो है नौकरी देने संभव नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर पैर के भी देखा जाता है। तो अगर जिस बच्चों को फ्लैट पैर है उनके लिए बहुत ही आने वाला समय में जो है फौज में जाना काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लैट पैर में जो है ऐसे व्यक्तियों को नहीं लिया जाता है किसी भी जो है सोल्जर वाले जो है गतिविधियों में। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या केस है। उसके पश्चात आता है घुटने टेकना। देखा जाए तो घुटने टेकना जो है एक जनु बलगम्स का उपचार काफ़ी हद तक समस्या के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। जनु बलगम्स जो होता है इसका उपचार काफ़ी हद तक उस समस्याओं को और गंभीरता पर निर्भर करता है घुटने टेकने में। देखा जाए तो इसके लिए घुड़सवारी और घुटने के बीच तकिया रख कर कुछ देर सीधे खड़े रहना जैसे व्यायाम जो है सर्वोत्तम माना गया है। कि घुड़सवारी और घुटने के बीच तकिया रख कर कुछ देर सीधे खड़े रहना जैसे व्यायाम जो है इसके लिए काफ़ी सर्वोत्तम रहता है। जनु बलगम वाले अधिकांश लोग के लिए योग और व्यायाम घुटनों को पुण्य संरक्षित और स्थिर रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जनु जो बलगम वाले अधिकांश लोग होते हैं उनके लिए योग और व्यायाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। देखा जाए तो नियमित रूप से पद्मासन और गोमुख आसन करने से पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने और घुटने को जो है दुरुस्त करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर दो आसन काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, पद्मासन और गौमुख आसन, जिसके अंतर्गत जो है इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। देखा जाए तो ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम सरल हो सकते हैं, जैसे बैठे या लेटे समय पैर उठाना। तो ये भी एक गतिविधियाँ होती है जिससे हम इसका जो छुटकारा पा सकते हैं। इवन देखें तो प्री यौवन अवस्था में वॉकिंग कैलिपर्स का उपयोग भी एक बड़ी मददगार हो सकता है। जब प्री यौवन आरंभ होती है तो इस अवस्था में वॉकिंग और कैलिपर्स का उपयोग भी काफ़ी इसके लिए मददगार साबित यहाँ पर हो सकता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीनों के तीनों जो थे
थे और इसका उपयोग और इसका जो उपाय भी काफ़ी महत्व था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्व रखता है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, करना है और एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना है। अगर आपको समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बनता है। अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कहते हैं जब आपको समझ में आ रहा है तो दूसरे को भी समझ में आएगा, ये विश्वास है। कहते हैं कि दूसरे को मदद करना ही सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। तो ये तो आपके मन में कैसा विचार है तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि त्रिपाण सेंटर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बने रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो आपके लिए, छोटे के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके बड़े के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैनल हो सकता है। जिसको सोचना नहीं है, अभी त्रिपाण को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।